हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन, एज वी नो, is very complicated process. So before going into the details of the process, we will discuss certain important aspects related to light reaction, and we will discuss these aspects one by one. First is photosynthetic pigments. Photosynthetic pigments है क्या? Photosynthetic pigments actually are those pigments which absorb light or solar energy and convert this absorbed light energy into chemical energy. There are mainly three types of such pigments. These are chlorophyll, carotenoids and phycobilins. कैटोनाइड्स एंड फाइकोबिलिन्स जो है इसे एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विथ क्लोरोफिल्स, एंड वो क्लोरोफिल डायरेक्ट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है बट ट्रांसफर कर देता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में। ये सारे पिगमेंट जो है वो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लास्टिड मीन्स क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। नंबर वन इज granum part and the second one is stroma part. Granum part is responsible for the light reaction of photosynthesis and stroma is responsible for the dark reaction of photosynthesis. Granum जो है it is made up of several thylakoids and it looks like a pile of coins. So now chlorophylls. Chlorophylls are the main pigments which plant use in photosynthesis. They mainly absorb red and blue violet light. ये रेड लाइट और ब्लू वायलेट लाइट्स को मेनली एब्जॉर्ब करता है एंड रिफ्लेक्ट्स अदर लाइट्स सच एज ब्लू ग्रीन, ग्रीन एंड येलो लाइट्स। जो हमारा प्लांट्स ग्रीन दिखता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रीन लाइट्स। ग्रीन लाइट्स है देर आर एटलीस्ट 7 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स सच एज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई and bacteriochlorophyll and bacterioviridins. All these chlorophylls differ slightly in their absorption spectra as well as in their structure. Of these chlorophylls, chlorophyll A is considered as the primary pigment because it is directly involved in the process of photosynthesis, and it is found in all photosynthetic eukaryotes as well as इन ब्लू ग्रीन अलगी जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। एंड लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अदर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स और एक्सेसरी पिगमेंट्स, जो दो एक्सेसरी पिगमेंट्स हमने ऊपर देखा, इज अल्टीमेटली ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए। सो क्लोरोफिल ए इज द मेजर सेंटर which carries out the process of photosynthesis. Thus we see that it is the major light harvesting pigment of green plants. Chemically, chlorophyll A is a tetrapyrrolic ringed structure and possessing a nitrogen atom. नाइट्रोजन आइटम होल्ड करता है नॉन आयनिक मैग्नीशियम आइटम को। हम इसके स्ट्रक्चर को यहाँ देखेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। वी कैन सी हियर द 4 पैरल नंबर, यहाँ पर से 1, 2, 3 and 4. दिस इज द 4 रिंग and this is one CH3 atom attached here. इन क्लोरोफिल बे ये CH3 एटम रिप्लेस हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप से, तब वो फॉर्मेशन कर देता है क्लोरोफिल बी का। एंड दिस इज देयर इज लॉन्ग टेल जिसे को हम लोग फाइटोल टेल कहते हैं। सो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ वन, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पोरफायरिन हेड एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टेल। इसको ब्रीफ में यहाँ भी दिखाया गया है हेड के शक्ल में एंड दिस इज टेल। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स are made up of one porphyrin head which is tetrapyrrolic and एक लंबा फाइटोल टेल्स होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स and the other chlorophyll A molecule and other chlorophylls differ slightly in their structure. Now carotenoid pigments, there are actually 2 types of carotenoids. Carotenoids है क्या है? This is actually terpenoids. This is a large group which are terpenoids and they occur in thylakoids of chloroplast and chromoplast along with chlorophyll molecules.
एंड दो टाइप का कैरोटीनॉइड्स है, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स. कैरोटीनॉइड्स हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले in the entire process of photosynthesis. They transfer the light energy which they absorb to chlorophyll molecules as they do not participate directly in the process of photosynthesis. And the second important role is that कि ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम हीट डिस्ट्रक्शन, जिसे हम लोग फोटोडायनेमिक डिस्ट्रक्शन कहते हैं. ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करता है. And one more important role of carotenoids that it is and that such pigments are attached with the phototropism. इसके रोल्स को भी कई एविडेंस मिले हैं कि कैरोटीनॉइड्स फोटोट्रोपिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ फाइकोबिलिन्स. फाइकोबिलिन्स are also accessory pigments, and there are two types of phycobilins, that is phycoerythrin and phycocyanin. Phycoerythrin is red in color and phycocyanin is blue in color. Now the second aspects of light reaction of photosynthesis, that is lights and its absorption. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाइट लाइट जो होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, जिसे हम लोग भी गायोर के नाम से जानते हैं. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. एंड वायलेट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ whereas the red has the longest. Shortest wavelength 390 to 430 nanometer and red light has 660 to 780 nanometer. There are other lights also such as infrared radiation and ultraviolet radiation. Only a small portion of visible spectrum, this is the visible spectrum जो हम लोग ने डिस्कस किया विद गायरो, this is the visible spectrum. Only a small portion of visible spectrum reaching the earth's surface utilized in photosynthesis. visible spectrum का कुछ ही बहुत स्मॉल पार्ट्स हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं, प्लांट्स यूटिलाइज कर पाता है फोटोसिंथेसिस में. एंड क्लोरोफिल्स एज वी हैव डिस्कस अर्लियर एब्जॉर्ब मेनली ब्लू एंड रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट. ब्लू लाइट का वेवलेंथ होता है 470 to 500 नैनोमीटर एंड रेड लाइट का होता है 660 to 780 नैनोमीटर. इसी लाइट्स को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जनरली एब्जॉर्ब कर पाता है. नाउ द थर्ड एस्पेक्ट्स, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन. जैसे ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ये एक्चुअली एनर्जाइज हो जाता है एंड इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंड दिस स्टेट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट एज अपोज टू द ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट इज द स्टेबल स्टेट, लेकिन जैसे ही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ये एक्साइट हो जाता है, अपने आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को भेज देता है. इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली देयर आर 4 डिफरेंट स्टेट ऑफ एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. वो 4 स्टेजेस हैं. फर्स्ट सिंगलेट स्टेट, फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट, सेकंड सिंगलेट स्टेट एंड सेकंड ट्रिपलेट स्टेट से. हम लोग एक फिगर से इसको समझने का प्रयास करेंगे. दिस here we can see here the second singlet, first singlet, second triplet and first triplet state. ब्लू लाइट जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है इट सेंड्स लाइट टू द सेकंड सिंगलेट स्टेट. लेकिन ये जैसा कि हमने बताया कि वेरी अनस्टेबल स्टेज होता है और अनस्टेबल स्टेट के कारण ये वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आना चाहता है. और जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है इट इमिट्स हीट इमिट्स करता है और फर्स्ट इट रीचेज टू फर्स्ट सिंगलेट स्टेट की तरफ पहुंचता है. और हीट इमिशन के कारण मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट. हीट इमिशन हो गया, एनर्जी का लॉस हो गया यहाँ पे. लेकिन रेड लाइट ऑब्जर्व करता है, इट सेंड्स द इलेक्ट्रॉन टू द फर्स्ट सिंगलेट स्टेट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भेजता है ये. एंड फिर ये ग्राउंड स्टेट में ये भी वापस आना चाहता है कि ग्राउंड स्टेट स्टेबल स्टेट है, ये फिर वापस आना चाहता है ग्राउंड स्टेट में. बट जैसे ये वापस आने के दौरान जब वापस आता है ग्राउंड स्टेट में तो इट इमिट्स लाइट, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लोरेसेंस. यहाँ पर लिखा है दिस इज फ्लोरेसेंस. लेकिन नॉट ऑल द एनर्जी इज लॉस्ट. some energy is utilized in the process of
फोटोसिंथेसिस से। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फिर वापस जैसे आता है सेकंड ट्रिपलेट एंड फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट पर वापस आता है, दिस इज कहा जाता है थर्मो स्टेबल स्टेट है ये, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत देर से बहुत समय तक यहाँ पर रहता है और मैक्सिमम एनर्जी का यूटिलाइज इस स्टेज में किया जाता है। सो जो एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी, इसका बहुत सारा पार्ट्स आइदर इट इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, in the form of light, but a small portion of such energy is also utilized by the green plants to carry out the process of photosynthesis, and वो एनर्जी को यूटिलाइज फिर ये करता है for the fixation of carbon dioxide in the dark reaction. And this is written here as red light photon excites an electron from a ground level molecular orbital to the first excited state S1, and the high energy blue photon excites an electron to the second singlet state. These excited states are very unstable, बहुत अनस्टेबल होता है एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स, एंड हैविंग अ लाइफ टाइम यूजुअली लेस देन 10⁻⁹ सेकंड्स। आप समझ सकते हैं कि इतना कम समय तक रहता है, तो फिर वो वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आना चाहता है। द S2 स्टेट इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स डाउन टू S1 स्टेट विद द लॉस ऑफ एनर्जी मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एनर्जी का लॉस काफ़ी होता है जैसे ही ब्लू लाइट्स एब्जॉर्ब करता है लाइट्स को, एंड ये जब जैसे ही वापस आता है नेक्स्ट स्टेज में, तो एनर्जी का काफ़ी लॉस एज ए हीट के फॉर्म में हो जाता है। लेकिन कुछ जैसे S1 स्टेट्स पर पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉप डाउन टू ऑल्सो ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है, बट दिस रिटर्न इज नॉर्मली accompanied with the emission of lights in the red region, and this process is known as fluorescence. उसको हम लोग फ्लोरेसेंस कहते हैं। However, not all the energy is lost as fluorescence. Instead, a part is used in driving photosynthetic reaction. इसका कुछ पार्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को कैरी करने में भी मदद मिलता है, उसको एब्जॉर्ब करता है ग्रीन प्लांट्स और उसको फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में यूज़ करता है। सो वी हैव सीन दैट कि हाउ एनर्जी लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एंड जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, फिर वापस वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, और ग्राउंड में जैसे ही आता है कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है, but certain energy is utilized to carry out the further process of photosynthesis or fixation of carbon dioxide in the dark reaction. ये सारा एनर्जी स्टोर होता है जो कि बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में मदद काम करता है। Now we will discuss another aspect, that is immersion and immersion effects. This is also very important aspect of light reaction of photosynthesis. Actually, Robert Emerson and his colleague measured the efficiency of photosynthesis of corolla. Corolla की photosynthesis उन्होंने efficiency को देखना चाहा with the help of monochromtic light. Monochromtic light का मतलब होता है कि एक समय में एक ही वेवलेंथ की लाइट्स को प्रोवाइड किया गया और देखा गया कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। एंड दे स्टडी द क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड को उन्होंने मेज़र किया। क्वांटम यील्ड मेज़र क्या आता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन को काउंट करके क्वांटम यील्ड को मेज़र किया जाता है, एंड फाउंड दैट इट डिक्रीज्ड वेरी शार्पली। देखा गया ये कि जैसे ही लाइट फार रेड रीजन में पहुंचती है, फार रेड रीजन की लाइट जैसे ही दिया जाता है क्लोरेला को, तो ये फार रेड रीजन में देयर इज शार्प डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दिस ड्रॉप इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दे कॉल इट रेड ड्रॉप। इसको हम लोग रेड ड्रॉप के नाम से कहते हैं। अब फिर उन्होंने फर्दर फिर जो एक्सपेरिमेंट किया इन 1957 में, उन्होंने उसमें देखा कि व्हेन दिस ड्रॉप कैन बी मेंटेन, इस ड्रॉप को इन्हांस किया जा सकता है। उन्होंने क्या देखा कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इज इन्हांस्ड इफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। अगर शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट साथ साथ दी जाए तो ये ड्रॉप को इन्हांस किया जा सकता है, enhance किया जाता है। They also found that when both wavelengths of light were given together, the quantum yield of photosynthesis were greater than the sum effect. Effects when both of these lights
वे आर गिवन सेपरेटली। उन्होंने ये देखा कि अगर लाइट्स को अलग अलग देते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ को अलग दिया जाता है एंड लॉन्गर वेवलेंथ के लाइट को अलग से अगर हम लोग देते हैं, तो दोनों का जो सम टोटल ऑफ फोटोसिंथेसिस यील्ड होता है वो साइमल्टेनियसली दिए हुए लाइट से कम होता है। मतलब साइमल्टेनियसली अगर हम लाइट को प्रोवाइड करते हैं, लाइट को देते हैं, हायर एंड लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ एंड शॉर्टर वेवलेंथ को साइमल्टेनियसली सप्लाई करते हैं तो फोटोसिंथेटिक यील्ड्स ज़्यादा होता है। तो इस इफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं इमर्शन इनहैंसमेंट इफेक्ट और सिंपली इमर्शन इफेक्ट। This effect of immersion clearly indicated that both lights had synergetic effects on photosynthesis. That is, one helped the other carrying out the process. इस एक्सपीरियंशियल इमर्शन के क्या पता चला कि बोथ टाइप्स ऑफ लाइट्स हैज सिनर्जेटिक इफेक्ट्स, यानी दोनों ही लाइट एक दूसरे को हेल्प करता है फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट में दोनों तरह के लाइट्स जो हैं ये हेल्प करता है एक दूसरे को। इससे ये भी कंक्लूजन निकाला गया कि देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट सिस्टम, जिसको के बाद में नाम दिया गया पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम 1 and photosystem 2. Photosystem 1 actually it absorbs light longer than 680 nanometer. In normal case, however, it can be driven by the lights of shorter wavelengths of lights को भी absorb कर सकता है, लेकिन mainly ये absorb करता है longer wavelengths of light को absorb करता है, जिसको हम लोग P700 से designate करते हैं। And the second one is which is designated as P680 and it absorbs light of lower wavelengths only, जिसको हम लोग फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। Chlorophyll A, as we know, is the key pigment in both the systems, and दोनों systems में the two photo system corresponds to two reaction centers of energy trap. Here is the difference of टू फोटो सिस्टम्स से, और इसी को हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे कि कैसे फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे कैरी आउट टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, वन इज साइक्लिक एंड अनदर वन इज नॉन साइक्लिक प्रोसेस। इसमें डिफरेंसेस यहाँ पर दिया गया कि फोटो सिस्टम 1 क्या चीज़ रहता है एंड फोटो सिस्टम 2 क्या है। फोटो सिस्टम 1 it actually consists of pigment molecules absorbing both shorter and longer wavelengths of light, whereas PS2 जो है ये absorb करता है only shorter wavelengths of light को। उसी तरह इसका रिएक्शन सेंटर PS1 का, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, it is P700, whereas the reaction center of PS2 is 680. PS1 lies on the outer surface of thylakoid, whereas PS2 occurs on the inner surface of the thylakoid. और PS1 में in this system molecule oxygen is not released, whereas where PS2 is involved molecular oxygen release होता है by the photolysis of water. PS1 is involved in both the cyclic and non-cyclic flow of electron, जिसको कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, and PS2 is involved only non-cyclic flow of electrons, ये केवल non-cyclic और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इन्वॉल्व होता है। हम लोग आगे फिर देखेंगे कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में हाउ PS1 एंड PS2 आर इन्वॉल्व। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।